Hello friends, this is Kumar and I welcome all of you to my YouTube channel. Friends, today we are going to discuss My Fellow Man, My Friend by Faiz Ahmed Faiz. Faiz Ahmed Faiz was born in 1911 and died in 1984. He is one of the most accomplished poets of the Indian subcontinent in the latter half of the 20th century. He was born in Sialkot, now in Pakistan. Brought up as a traditional Muslim child, he memorized the Holy Quran and was thoroughly grounded in Arabic and Persian. However, his literary taste soon led him to the study of Urdu poetry and English as well as other European literatures such as French and Russian literature. He envisioned poetry as a struggle in which art and life complemented each other. Faiz died in Lahore in 1989, shortly after being nominated for the Nobel Prize in Literature. He was also conferred with the highest civilian honor of Pakistan, Nishan-e-Imtiaz, posthumously in 1990. Throughout his whole life, Faiz continually wrote and published and became the best-selling modern Urdu poet in India as well as in Pakistan. The present poem, My Fellow Man, My Friend by Faiz Ahmed Faiz is a personal lyric, and it is in the form of an address by the speaker to his friend, his companion and his fellow man. The friend of the speaker is suffering from a malady or mental disorder which is next to angst, which characterized by strong anxiety, unhappiness and mental disorder. The friend of the speaker is suffering from a mental disease or a disease which is going to take his life, and that's why the friend of the speaker is very unhappy, very disordered, and he is not, he is very sad because he is going to die very soon. That's why the speaker, the poet in the poem, is comforting his friend, but he is not sure whether his words of consolation or solace will give him comfort or not. So now let us read the poem. My Fellow Man, My Friend by Faiz Ahmed Faiz. If I could know for certain, my fellow man, my friend, if I could know for certain that your heart weariness means दिल घबराना. तो यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि अगर मैं जान सकूँ कि तुम्हारी, मेरे दोस्त, मेरे फेलो मैन, अगर मैं तुम्हारी हर्ट वेरीनेस में जान सकूँ कि तुम्हारा दिल क्यों घबराया हुआ है, तुम क्यों घबराए हुए हो, है ना, तुम चिंता में क्यों हो. That brooding in your eyes and those thoughts that sear you might. Brooding means thinking, सोच. तुम्हारी आंखों में जो सोच चली हुई है, जो तुम सोच रहे हो. And those thoughts that sear you might. और जो विचार हैं तुम्हारे, जो तुम्हें अंदर से जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, है ना. Be healed by any caring or comforting of mine. अगर मैं जान सकूं कि जो भी तुम्हारे अंदर, जो भी तुम्हें, जिस भी कॉन्फ्लिक्ट से तुम गुजर रहे हो, उस कॉन्फ्लिक्ट का अगर मैं हल ढूंढ सकूं, अगर वो मेरे किसी केयरिंग से या कंफर्ट से अगर उन्हें हील किया जा सके, उन्हें ठीक किया जा सके, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा उन्हें. और इफ़ माई वर्ड्स ऑफ सोलैस वर मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग. सोलैस मीन्स पीस और सांत्वना. और अगर मेरे सांत्वना वाले वर्ड्स, शब्द, जो मैं तुम्हें कंफर्ट करने के लिए जो वर्ड्स बोल रहा हूँ, वर मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग रिवाइवल टू योर स्ट्रिकन एंड शैडो हॉन्टेड ब्रेन. स्ट्रिकन मीन्स इंजर्ड और चोट खाए हुए, और शैडो हॉन्टेड ब्रेन मीन्स शोइंग साइंस ऑफ एंग्जाइटी. तो बोलता है अगर मेरे शब्द, अगर मेरे शांति भरे, सांत्वना भरे शब्द तुम्हारे जो भी दुख है, जो भी तुम्हारा इंजर्ड और जो दिमाग है तुम्हारा जो इंजर्ड है, जो टेंशन से भरा हुआ है, एंग्जाइटी से भरा हुआ है ना, तो उसको अगर मेरे वर्ड कुछ कंफर्ट दे सकें तो मैं ज़रूर देना चाहूँगा तुम्हें, है ना, वो कंफर्ट्स. वाइप फ्रॉम योर ब्रो द रिंकल्स दैट शेम एंड फेलियर राइट. और तुम्हारे माथे पे जो शिकन के निशान हैं, जो शिकन की झुर्रियाँ जो बनी हुई हैं, है ना, शिकन की लकीरें जो बनी हुई हैं, जो शेम और फेलियर की वजह से तुम्हारे माथे पे हैं, अगर मैं उन्हें वाइप कर सकूँ, उन्हें साफ़ कर सकूँ, तो तुम्हारी टेंशन को अगर मैं दूर कर सकूँ किसी भी तरीके से, तो मैं करना चाहूँगा. एंड राइट एंड मेंड द पेल कंजम्पशन दैट वेस्ट अवे योर यूथ. और मैं तुम्हारी मेंड, पेल कंजम्पशन मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ एलमेंट, है ना, बीमारी है कोई तरह की जो उसकी जान ले सकती है, जान लेने वाली है ना. तो अगर उस बीमारी को
जो तुम्हारा जवानी को धीरे धीरे खाए जा रही है, उसको अगर मैं ठीक कर सकूं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। इफ़ आई न्यू दिस फॉर सर्टेन माई फेलो मैन माई फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारी बीमारी को जान सकूं, मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं तुम्हारी बीमारी को जान सकूं तो मैं क्या करूँगा। डे एंड नाइट आई वुड चीयर यू, दिन रात मैं तुम्हें चीयर अप करूँगा, है ना, मोटिवेट करूँगा। मॉर्निंग एंड इवनिंग मेक सॉन्ग्स एंड न्यू सॉन्ग्स टू प्लीज़ यू, दिन रात मैं तुम्हारे लिए नए नए गाने बनाऊँगा तुम्हें खुश करने के लिए। हनीड हार्ट क्वाइटिंग सॉन्ग्स ऑफ कास्केड्स एंड स्प्रिंग टाइड्स एंड फ्लावरी मिडोलैंड्स। Honeyed heart quieting means sweet and gentle songs. Songs of cascades means songs of waterfalls and spring tides and flowery meadowlands. Meadowlands means घास का मैदान, जो फूल से भरे हुए घास के मैदान। तो कैसे कैसे गाने बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, अब बता रहा है। Honeyed and heart quieting, तुम्हारे दिल को शांति देने वाले। Honeyed मतलब स्वाद भरे गाने, sweet and gentle, और वाटरफॉल्स वाले गाने, स्प्रिंग टाइड्स वाले गाने, फ्लावरी मिडोलैंड्स वाले, ऐसे स्प्रिंग से नेचर से रिलेटेड गाने तुम्हारे लिए बनाऊंगा जो कि तुम्हें कंफर्ट दे सकें। ऑफ ब्रेकिंग डॉन, ऑफ मून लाइट, ऑफ द वंडरिंग स्टार्स, और टेल यू ओल्ड रोमांसेस ऑफ शाइनिंग आइज एंड लव। और कैसे बनाऊंगा मैं तुम्हें, ढलती शाम के गाने बनाऊंगा, इस चंद्रमा के मून की लाइट पे गाने बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और वंडरिंग स्टार्स, जो सितारे टूट जाते हैं जिससे ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो ऐसे गाने उन सितारों पे गाने बनाऊंगा तुम्हारे लिए मैं। और टेल यू ओल्ड रोमांसेस ऑफ शाइनिंग आइज एंड लव, और तुम्हें ओल्ड रोमांस की कहानियाँ सुनाऊंगा मैं, है ना, जो ग्रीक के टाइम्स की ओल्ड रोमांसेस थी ना, शिवेलरी की कहानियाँ थी जो, तो वो कहानियाँ लव की, शिवेलरी की, वो कहानियाँ तुम्हारे लिए सुनाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे गाने बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें वो कंफर्ट दे सकें तो। Of beautiful proud woman and bosoms cold as snow melting under the fervent touch of a lover's hands। ठीक है, तो ऐसी वुमेन की कहानियाँ सुनाऊंगा मैं, प्राउड वुमेन की, जिन्हें अपने हुस्न पे बहुत गुमान था और जो पिघल गई अपने लवर के हैंड के टच से ही। लवर के हैंड का जो फर्वेंट टच मतलब वार्म टच, जो पैशनेटिक टच उनके जैसे ही उनकी बॉडी पे उनके लवर के हैंड का पड़ा, और वैसे ही वो पिघल गई जो पहले की बहुत ही प्राउड थी। तो ऐसी वुमेन की कहानियाँ, ऐसे लव की कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसे लवर की कहानियों के गाने मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम्हें खुश करने के लिए, अगर तुम्हें वो खुशी दे सकें तो। टेल हाउ फेमिलियर फीचर्स लॉन्ग नोन बाय हार्ट मे वाइल वी वॉच दैम बी ट्रांसफिगर्ड इन वन मोमेंट शॉर्ट स्पेस। तो इस तरह के फीचर जो एकदम से बदल गए, पहले वुमेन क्या थी, प्राउड थी, और बाद में जैसे ही लवर का हाथ लगा तो बिल्कुल पिघल गई उसके हाथों के साथ ही। तो ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें दिल में पहले ही पता हो, लेकिन फिर भी जब हम सामने देखते हैं तो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने जो बदल जाएं, जो बिल्कुल मोमेंट्स जो हैं एकदम से चेंज हो जाएं। ऐसी मोमेंट्स की कहानियाँ मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसे मोमेंट्स के गाने में बनाऊंगा तुम्हारे लिए। और हाउ द क्रिस्टल वाइटनेस ऑफ द बिलव्ड वंस चीक विल सडनली बी किंडल्ड इनटू वाइन्स रूबी ग्लो। और जो वुमेन का चीक, जो बिलव्ड का चीक पहले बिल्कुल सफ़ेद था, गिलास की तरह सफ़ेद था, जैसे ही उस पर लवर का हाथ पड़ा किस तरह से वो लाल हो गया। कैसे लाल हो गया, बिल्कुल वाइन के रंग की तरह डार्क रेड हो गया। इस तरीके की कहानियाँ, इस तरीके के गाने बनाऊंगा तुम्हारे लिए मैं, अगर तुम्हें वो कंफर्ट दे सकें तो। How of herself the rose spray leans to be plucked and send a breath of perfume stealing through the dark hall of night। ऐसे रोज़ स्प्रे की कहानियाँ सुनाऊंगा मैं तुम्हें जो अपने आप टूटने के लिए, ऐसे रोज़ की कहानियाँ जो अपने आप टूटने के लिए तैयार हो, और परफ्यूम मतलब खुशबू अपनी पूरे डार्क हॉल में, जो पुराने समय के डार्क हॉल होते थे ना, बड़े बड़े हॉल होते थे जहाँ से खुशबू आती रहती थी, ऐसे हॉल्स की कहानियाँ सुनाऊंगा तुम्हें मैं, ऐसे गाने बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें चीयर अप करने के लिए, अगर तुम्हें वो कंफर्ट दे सके तो। नेक्स्ट आजा पढ़ते हैं। सच सॉन्ग्स आई वुड कीप मेकिंग टू सिंग यू आवर बाई आवर। ऐसे ही गाने मैं बनाता रहूँगा तुम्हारे लिए, हर समय के बाद ऐसे नए नए गाने मैं तुम्हारे लिए बनाता रहूँगा तुम्हें चीयर अप करने के लिए। वीविंग न्यू नोट्स टू चार्म यू सिटिंग हेयर बाई योर साइड। नए नए नोट्स बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खुश करने के लिए, ऐसे ही तुम्हारी साइड में बैठ के मैं बनाता रहूँगा ये।
बट फॉर योर रूटेड ट्रबल बट इज़ माई राइमिंग वर्थ। लेकिन जो बीमारी तुम्हें है, जो गहरी बीमारी तुम्हें है, उसके आगे मेरी ये राइमिंग क्या है, ये मेरे गाने क्या है उसके आगे। जो तुम्हें बीमारी लगी हुई है, जो तुम जिस डिसऑर्डर से, मेंटल डिसऑर्डर से तुम गुजर रहे हो, जिस एंग्जाइटी को तुम सह रहे हो, उसके आगे मेरी राइमिंग, मेरे सॉन्ग्स क्या हैं? कुछ भी नहीं है। वर्स इज सॉफ्ट बाम फॉर सोरो, नो सर्जियन टू सेव लाइफ। वर्स मीन्स जो हम वर्स बनाते हैं, गाने बनाते हैं, ये थोड़ा बहुत दुख कम करने के लिए तो ठीक है, उसको शांत बना देने के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे ज़िंदगी को तो बचाया नहीं जा सकता, है ना। दिस इज़ नो रेमेडी फॉर सेविंग द लाइफ। लाइफ को सेव नहीं कर सकते हम इससे। अपने दुखों को कुछ समय के लिए भूल जरूर सकते हैं, लेकिन लाइफ को सेव करना गानों के से ऐसा नहीं होता। म्यूज़िक अ साव फॉर सिकनेस। म्यूज़िक इज़ अ काइंड ऑफ ऑइंटमेंट फॉर सिकनेस। ऑइंटमेंट एक साव, एक ऐसा ऑइंटमेंट होता है जो जिससे हम वर्निंग वाली जगह जो होती है उसको, अगर उसको उस ऑइंटमेंट को उस पर लगाएं तो वो ठीक हो जाता है, उससे दर्द कम होती है। तो म्यूज़िक भी सिकनेस के लिए, बीमारी के लिए एक ऐसा ही साव की तरह का काम करता है, जिससे कि हमारी जो सिकनेस है, उसकी जो हमारी जो सोरोज़ हैं, उससे दुख थोड़े कम हो जाते हैं। नो लांसेट। लेकिन ये नाइफ तो नहीं है, लांसेट इज़ अ शॉर्ट नाइफ जिसके 2 एजेस होते हैं, है ना। तो लांसेट नहीं है म्यूज़िक उसके लिए, नाइफ नहीं है, नाइफ का काम नहीं कर सकता उसके लिए। एंड देयर इज़ नो रेमेडी फॉर सिकनेस लाइक यूर्स। और जो बीमारी तुम्हें है, जिस तरह की एलिमेंट तुम्हें है, इससे तो कोई छुटकारा है ही नहीं, कोई इलाज है ही नहीं इसका। लाइलाज बीमारी है ये, टेंशन की कोई बीमारी नहीं है। क्या हो सकता है कि पोइट के फ्रेंड को कोई ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ही ना हो, है ना। मे भी टीबी हो सकता है, जैसे शुरू में फर्स्ट स्टांजा में बताया गया था, तो हो सकता है उसको टीबी हो जिसके कोई इलाज नहीं था उस समय, अभी भी नहीं है, लेकिन उस समय उसका कोई इलाज ना हो। तो ऐसी बीमारी अगर उसके फ्रेंड को लगी थी तो हो सकता है उसका कोई इलाज ना हो। तो वही कह रहा है कि इस तुम्हारी बीमारी के लिए कोई रेमेडी बनी ही नहीं है एक्सेप्ट द नाइफ। नाइफ इज़ अ काइंड ऑफ मेटाफर फॉर द डेथ। तो डेथ के अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है। द मर्डरर, द रिडीमर, दैट इज़ नॉट इन माई पावर। मौत के अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है, मारने के अलावा, और वो मेरे हाथ में नहीं है। नोर इन द पावर ऑफ एनी दैट ड्रो ब्रेथ ऑन दिस अर्थ। और कोई भी ऐसा जीव जो सांस लेता है मेरी तरह, या हम सभी की तरह, उसके हाथ में मौत और जन्म हमारे हाथ में नहीं है, ना ही किसी ऐसे के हाथ में जो मेरी तरह सांस लेता है, जो मोर्टल है ना। एनी एक्सेप्टिंग ओनली योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अगर कोई इसका इलाज कर सकता है जो बीमारी तुम्हें है, तो वो तुम हो, तुम ही हो और सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारे अलावा इस बीमारी को कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। जो भी तुम्हारी टेंशन, जिस भी टेंशन से, जिस भी मेंटल डिसऑर्डर से, जिस भी किसी ऐसी बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे मन में इतनी टेंशन हो गई है, इतनी मतलब इतना तुम्हारा दिमाग जो है टेंशन से भरा पड़ा है, उसका इलाज तुम खुद ही कर सकते हो। ना मेरे गाने, ना कोई और तरीका, ना मेरे कंफर्टिंग वर्ड्स तुम्हें ठीक नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग कैन सेव योर सेल्फ इज़ ओनली योर सेल्फ। तुम ही खुद को सेव कर सकते हो। आखिर में पोइट ये कहता है अपने फ्रेंड को, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं कंफर्टिंग वर्ड्स, गाने गुने बना सकता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनका कोई फ़ायदा होगा। हमारी पोइम यहाँ पे एंड होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द पोइम। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please press the bell icon for further such updates. This much all in this lecture. Thank you very much for joining us.